Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Sir. Yes, tell me that we have done till which question, which exercise? बेटा चैट बॉक्स में बता दो कि आपने कहाँ तक कर लिया है। So I think this is 7B. अच्छा 7B में हमने निकला है. Sorry. जहरा बेटा देखिए जरा, मैंने आपको चैट बॉक्स में कुछ मैसेज किया है, आप उसका आंसर करिए चैट बॉक्स में. ओके फाइन. ओके सॉरी बेटा. Yes, sir, there is one child. ओके चलो. So we are still on exercise 1B, and which question we have to do now? I think we have to start question number 7 or 8. Have we done question 6 all the parts? और Yes, कोई- no, sir. No, sir. अरे मुझे तो याद आ रहा है कि हमने कर लिया है या नहीं करें.
तो I gave you No, sir. फोर्थ पार्ट तक कराए थे आई थिंक। मैंने आपसे कहा था कि फर्स्ट पार्ट मैंने कराया था, देन आई टोल्ड यू दैट यू हैव टू डू द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट ऑन योर ओन। बोला था ना मैंने? Yes, sir. The remaining parts you can do in homework. Let us start with question number 7. Question 7 से शुरू करते हैं. Okay. So this is fill-ups. It is to be done in the book only. Book में करना है fill-ups. Question 7. The first part. देखिए, can you all see the screen? Yes, sir. Yes, sir. The first part is -6 multiplied by what dash, यहाँ पर dash आ गया, multiplied by what is equal to 6. बताइए कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें -6 को, so you get 6. Sir, -1. Yes, exactly. -1 is the answer. -6. If you multiply -6 by -1, you will get +6. Fine, all of you. First part का answer clear. Yes, sir. Similarly, the second part. What is it? इसमें आपको कह रहे हैं -18 multiplied by what is equal to -18. Very similar. थोड़ा सा difference है बस. -18 Sir, 1. Sir, 1. is equal to -18 only. 1. If you multiply -18 by 1, you will get -18. Correct answer. So third part. Third part is -8 into -9 is equal to -9 into what? This is -8. -8. Sir, -8. The answers. Okay, -8. Third part, the answer is -8. Fourth part. Sir, 7. Sir, 7. Fourth part, the answer is 7. Correct. बिल्कुल सेम. कौन सा लॉ है बेटा? लॉ का नाम बताना जो यहाँ पर यूज हो रहा है. कौन सा लॉ यूज करा है हमने यहाँ पर? फोर्थ, थर्ड और फोर्थ पार्ट दोनों में सेम लॉ यूज किया. मैं नाम बता चुका हूँ. डू यू रिमेम्बर? Sir, associative law. कम्यूटेटिव लॉ. Sir, commutative. यस, कम्यूटेटिव लॉ. कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है? कम्यूटेटिव लॉ कहता है A into B is equal to B into A. ठीक है. You can multiply two numbers in any order. चाहे फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई करो या सेकंड को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम ही आता है. ओके. Then the fifth one. फिफ्थ में यूज हो रहा है आपका एसोसिएटिव लॉ. फिफ्थ वाला और सिक्स्थ वाला नहीं, सॉरी सिक्स्थ अलग है. फिफ्थ वाला एसोसिएटिव लॉ है. क्या होगा इसमें? -5 multiplied by 3 into -6 is equal to -5 multiplied by 3 into -6. So आंसर क्या आएगा? -5 is the answer of fifth part. कौन सा लॉ है ये? This is associative law. इसका कहने का मतलब ये है, अगर 3 नंबर्स हैं, if there are 3 numbers, तो मैं कोई भी 2 को पहले मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, फिर थर्ड वाला जो रिमेनिंग है उसको मल्टीप्लाई कर लो, आंसर सेम ही आएगा. समझ में आ गया? एसोसिएटिव लॉ का कहने का मतलब क्या होता है? एसोसिएटिव लॉ ये कहता है if there are 3 numbers, then you can multiply any 2 numbers first and then you multiply the third one. Answer will be same. ठीक है? Understood what is the meaning of associative law, all of you? Yes, sir. Yes, sir. Understood. Very nice. चलिए, sixth part the answer is -5 multiplied by what is equal to 0. Any number multiplied by 0 is equal to 0. 0. Answer is 0. ठीक है? आगे समझ में? Yes, sir. Yes, sir. चलिए क्वेश्चन 8 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. लेट मी एक्सप्लेन. चलो सारे बच्चे क्वेश्चन पढ़ेंगे जल्दी से. रीड द क्वेश्चन. मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा. ठीक है? इन अ क्लास टेस्ट
containing 10 questions. 5 marks are awarded for every correct answer. अच्छा, let me tell you this type of question, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि exactly same यही question आपके एग्जाम में आएगा, but this type of question will definitely come in your exams and tests. ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आएगा, exactly यही नहीं आएगा, हो सकता है ये भी आ जाए, डिपेंड्स, बट इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक है, जो हम क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले हैं, तो ध्यान से सुनना। In a class test containing 10 questions, 5 marks are awarded for every correct answer and -2 marks are awarded for every incorrect answer. And 0 for each question not attempted. आपको रवि का स्कोर बताना है, सारे केसेस में स्कोर बताना है बच्चों का। रवि ने क्या करा है, 4 आंसर करेक्ट दिए, 6 आंसर्स रॉन्ग दिए हैं। फिर उसके बाद रीनू का स्कोर बताना है, फिर हीना का स्कोर बताना है। तो रवि का स्कोर पहले हम लोग बताते हैं। रवि का स्कोर बताने के लिए फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझ लीजिए क्या है। देयर आर 10 क्वेश्चंस इन अ टेस्ट। सुनिए ध्यान से, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। देयर आर 10 क्वेश्चंस इन अ टेस्ट, ओके, केवल 10 क्वेश्चन का टेस्ट है। सो इफ समवन गिव्स अ करेक्ट आंसर, अगर कोई क्वेश्चन का आंसर कोई बंदा करेक्ट आंसर देता है तो उसको 5 मार्क्स फॉर एवरी क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन अगर आंसर उसने गलत दे दिया, रॉन्ग आंसर दे दिया, तो मार्क्स मिलेंगे नहीं, कट जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। कितने माइनस होंगे? 2 मार्क्स माइनस हो जाएंगे फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। समझ में आया? जैसे मैंने 3 आंसर्स रॉन्ग दे दिए तो मेरे -6 हो जाएंगे। आ रही बात समझ में? अगर मैंने 3 आंसर्स रॉन्ग दिए तो -6। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हमें यहाँ पर ऐसे ही रवि का स्कोर निकालना है। रवि ने क्या करा, रवि हैज अटेम्प्टेड ऑल द 10 क्वेश्चंस, और उसको 4 आंसर्स उसके सही हैं और 6 आंसर्स उसके गलत हैं। तो हमें बताना उसका टोटल स्कोर क्या होगा। तो रविज स्कोर, रविज स्कोर अपॉस्ट्रोफी एस इज इक्वल टू, ऐसे ही लिखना है आपको कॉपीज में जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। रविज स्कोर इज इक्वल टू, तो सबसे पहले तो बताइए उसने कितने आंसर सही दिए, जल्दी देख के बताओ कितने आंसर सही दिए रवि ने। तो 4 4 आंसर्स करेक्ट, Her एंड total एवरी करेक्ट marks आंसर इज 20. गेटिंग हाउ मेनी मार्क्स? हर आंसर सही देने 6. के 5 मार्क्स, 5 sir. 5 मार्क्स मिलते हैं। Yes, sir. 6 are incorrect. 6 इसको are. 4 आंसर्स करेक्ट देने के कितने मार्क्स मिलेंगे? 20 मिलेंगे। एम आई राइट और नॉट? Yes, sir. You are right. Yes. बट यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 into 5 तो चलो मिल गए, फॉर करेक्ट आंसर्स देने के मार्क्स मिल गए उसको। 4 into 5 ब्रैकेट्स भी लगा सकते हैं, चाहे तो चाहो तो मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो करेक्ट आंसर्स के मार्क्स मिल गए। लेकिन बेचारे ने क्या करा Yes है, sir. आंसर्स गलत भी तो दिए हैं। कितने गलत दिए हैं? 6 दिए हैं। That's 6. तो 6 Yes sir. गलत आंसर देने के 2 मार्क्स फॉर एवरी क्वेश्चन, 2 मार्क्स कट भी तो रहे, तो यानी कि कितने मार्क्स उसके कट जाएंगे टोटल? -12. वेरी गुड, 12 Minus मार्क्स 12. उसके माइनस हो जाएंगे। तो मैंने ये सही लिखा है या गलत लिखा है बताइए? Sir, Sir सही है. Yes, sir. correct. So this is 20 minus 12. Am I right? 12. यानी कितना स्कोर आया Yes, रवि sir. Yes का? sir. What is his Sir, total the score? answer is 8 8. marks. Sir 8. 8 marks. Have you all understood? रवि का स्कोर समझ में आ गया? Sir. Is it clear or not? Yes sir. Yes, sir. रीनो और Yes, हीनू sir. का, सॉरी, रीनू और हीना का स्कोर आप लोग बताएंगे? Sir 5 correct और फिर sir 5 गलत. हाँ, स्कोर बताइए कितना आया रीना और हीनू का, आपको निकालना है। एंड देन यू सेंड योर आंसर इन द चैट बॉक्स। ठीक है, फाइंड द स्कोर ऑफ रीना एंड हीनू आल्सो, सॉरी, रीनू एंड हीना आल्सो, and then you send your answer in the chat box.
So I am writing the answer here. You all need to check your answers. बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर्स ऑलरेडी दे दिए. रीनूज स्कोर कहाँ गया? सॉरी, रीनूज स्कोर Reenu has given 5 correct answers, and for every correct answer she is getting 5 marks. So 5 into 5 minus, उसने 5 आंसर्स गलत भी दिए, 5 आंसर सही दिए, 5 आंसर गलत दिए, तो 5 into 2 माइनस हो जाएंगे, यानी कि 10 मार्क्स कट जाएंगे. 25 मार्क्स मिले उसको फॉर गिविंग करेक्ट आंसर्स, लेकिन 10 मार्क्स उसके कट गए. क्यों कट गए? क्योंकि उसने 5 क्वेश्चंस के आंसर्स गलत दिए थे, इसलिए. So 25 minus 10 is equal to 15. So almost all of you have given the correct answer. Very good. Then the third part. Third part में हम किसका स्कोर निकालना? We have to find the score of Hina. Hina's score. Hina ने 2 आंसर सही दिए, 5 गलत दे दिए. इससे अच्छा घर बैठ जाती, तब भी मार्क्स 0 जाते. घर बैठ के भी 0 ही मार्क्स आने थे. एग्जाम देने गई बेचारी, इतनी मेहनत करी, तब भी 0 ही आए. कितने आ रहे हैं भाई? 2 आंसर सही दिए हैं, और फॉर एवरी करेक्ट आंसर शी इज गेटिंग 5 मार्क्स. दैट मींस 2 into 5. करेक्ट आंसर्स के मार्क्स होगा 2 into 5. एंड नाउ शी हैज गिवन 5 रॉन्ग आंसर्स, एंड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर उसके 2 मार्क्स कट रहे हैं. तो 5 into 2 ये माइनस हो जाएंगे. 5 into 2. ओके, तो 5 into 2 ये दोनों ही 10 minus 10. 10 minus 10 कितना होता है? 0 मार्क्स मिले हैं हीना को. हीना सबसे समझदार लड़की है क्लास की. वाह. हाँ जी बेटा, बताइए. अंडरस्टूड? Yes. Yes, sir. तो बेटा एक बात बताइए, आप लोग क्या हीना को एग्जाम देने जाना चाहिए था या नहीं देने जाना चाहिए था? Sir, she should go. You should go. Very nice. At least she has tried. Very good. Yes, sir. Very nice. चलो. So क्या is it possible कि कोई यहाँ पर स्कोर किसी बच्चे का माइनस में आ जाए? ऐसा हो सकता है? माइनस में मार्क्स आ जाए, ऐसा पॉसिबल है? No, sir. नहीं? No, sir. चलो मैं अपना स्कोर बताता हूँ. यहाँ पर एक पार्ट में अपने आप ऐड कर लेता हूँ. ऐसी आपको कॉपी में नहीं करना है. ये मैं आ गया, मेरी मैथ्स बहुत वीक है, इसलिए मेरा स्कोर देखिएगा अभी आप. 6 स्कोर ऐसी बना रहा हूँ मैं, बुक में नहीं है. ठीक है, मैंने यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कितने आंसर्स मैंने सही दिए. आई हैव गिवन 2 आंसर्स करेक्टली. 2 आंसर्स मैंने सही दिए, तो 2 into 5 सही है. Am I doing right? 2 आंसर्स मैंने सही दिए. Yes, sir. And बाद मैंने कितने आंसर्स गलत दिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ. आई हैव गिवन 8 रॉन्ग आंसर्स. तो 8 into 2 कितने मार्क्स कट जाएंगे? 8 रॉन्ग आंसर्स के कितने मार्क्स कटेंगे मेरे? 16. Am I right? तो 10 मार्क्स तो मेरे को मिले 2 क्वेश्चन सही आंसर करने के, और फिर मेरे 16 मार्क्स माइनस भी हो गए क्योंकि मैंने 8 क्वेश्चंस के आंसर गलत दिए, क्योंकि मैथ सही से आती नहीं, मेरी मैथ्स बहुत वीक है इसलिए. तो मेरा स्कोर कितना आ रहा है यहाँ पर? -6. -6. हो सकता है नहीं हो सकता? देखिए आ रहा है नहीं आ रहा है माइनस में मार्क्स? ऑब्वियसली आ सकते हैं. Yes, इट sir. डिपेंड्स कि आपने कितने क्वेश्चन सही आंसर करे हैं और कितने क्वेश्चन गलत आंसर करे हैं. इट डिपेंड्स ऑन दैट. हैव यू ऑल अंडरस्टूड? But sir, यस सर. हाँ जी. but sir, ये रियल में थोड़ी ना होता है. सॉरी सर, ये रियल में थोड़ी ना होता है. नहीं, ऐसे. रियल में भी होता है बेटा. इट हैपेंस इन रियल आल्सो. मैं आपको बताता हूँ. अभी आप लोग थोड़े छोटे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो छोटे बच्चों के जब एग्जाम होते हैं
उनको गलत आंसर देने के मार्क्स कटते नहीं है, माइनस में नहीं मिलते हैं। ठीक है, आपने अगर कोई क्वेश्चन सही करा है तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं, प्लस में मिलते हैं मार्क्स। लेकिन अगर आप कोई आंसर गलत करते हैं तो आपके मार्क्स उसमें माइनस नहीं होते हैं। लेकिन जब आप बड़े हो जाएंगे, व्हेन यू विल फेस सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि आपने मान लीजिए किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है या फिर कहीं आप किसी जॉब में अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो, या गवर्नमेंट जॉब के लिए आपने अप्लाई करा, तो वहाँ पर क्या होता है, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस अगर होते हैं तो उसमें आपके अगर सही आंसर करा है आपने तो आपको मार्क्स प्लस में मिलेंगे, लेकिन गलत आंसर करा है तो मार्क्स माइनस में भी मिलते हैं। तो यस, ऐसा होता है कि बच्चों के मार्क्स माइनस में भी आ जाते हैं। अंडरस्टूड? That's called negative marking. Yes, that is called negative marking. ओके, समझ में आई बात मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा था? Yes, sir. इंटरेस्टिंग चीज है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो हम लोग भी स्कूल में ऐसे ही कुछ करें, नेगेटिव मार्किंग वाला सिस्टम रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए स्कूल में? No, sir. नो सर। नहीं, क्यों? No, क्या sir. परेशानी है? सर अभी से कंप्यूटर बना दिए। डर लगता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम से? नो सर, बट अभी से तो अभी से नहीं तो अच्छा लोग लगता। छोटे बच्चे हैं, अभी से कैसे कर ले, है ना? सर अभी तो 12th भी नहीं पढ़ी है। हाँ, अभी छोटा होने का कितना फायदा है ना? मजे में होती है लाइफ बड़ी छोटे बच्चों की। So do you all want to grow, or do you want to, for the whole life? Stay the same. Sir, I want to grow because if I grow, I learn many things. देखो, बात है। But Sir, I also if I want to grow remain, So to can you face please tell the challenges. second thing what you tell? सेकंड थिंग मतलब, सॉरी, क्या चीज? So you said now that you want to grow, or after that what you और say? मेरा मतलब था, डू यू वांट टू ग्रो और यू वांट टू गो बैकवर्ड इन योर एज? क्या आप छोटे होना चाहते हैं? इफ देयर इज एन ऑप्शन, सो वुड यू लाइक टू ग्रो बैक, मतलब वुड यू लाइक टू ग्रो बैकवर्ड्स इन योर एज? वापस I जाना, would Want like to grow upwards. आगे to जाना चाहोगे? grow. To grow because we can travel alone. अच्छा, ट्रैवल अलोन। तो मैं तो आगे जाना चाहता हूँ। आगे जाना चाहते हो? पीछे जाना? Sir, कोई I बच्चा want है, to go. कोई बच्चा है जो पीछे जाना चाहता है अपनी एज में? No, sir. कोई No, नहीं sir. है? No, sir. They feel So not in sad. studies, but in real life, I want हाँ, to go रियल back लाइफ में because मैं कह रहा हूँ, नॉट इन द स्टडीज, रियल लाइफ में। Yes. so me. मी बोले तो नाम बोलो। Real life. Only for watching cartoons and playing. वाह वाह वाह, कौन और किसने बोला था मी? नाम बताओ। So Vrinda. वृंदा। वृंदा, व्हाई डू यू वांट टू, मतलब छोटे होना क्यों चाहते हो? सब बिकॉज बचपन में हमें बहुत कुछ करने को मिल जाता है, जो करने का मन करता है वो कर सकते हैं। वाह, कितनी अच्छी लाइफ होती थी बचपन में, पढ़ाई का कोई प्रेशर नहीं होता था। अब तो पढ़ाई का Yes, प्रेशर। there are many advantages of being a younger child. हाँ, so when you are young, Sir, I want. when you are a kid, So when we are smaller, nobody can scold us. Sir, but when we become competitors, nobody can speak us. But हम लोग अपने से ही खूब पढ़ने लगते हैं। हाँ, ये भी अच्छी बात है। दूसरों को कहने की जरूरत नहीं पड़ती। तो बट स्टिल इफ यू आस्क मी, अगर आप मेरे से पूछेंगे, मैं तो फिर छोटा होना चाहता हूँ दोबारा से, 2-3 years। So when we are, आप बड़े हो चुके हो। so when we are smaller, so when we are small, then we think that I want to become a pilot, I want to become a teacher, and when we are bigger, we think that I want to become a child. हाँ, सही बात है, एग्जैक्टली। जब बच्चे छोटे होते हैं तो जब वो छोटे होते हैं तो बड़ा होना चाहते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं तो सोचते हैं कि अब छोटा होना कितना अच्छा था, यही लगता है सबको।
So I also think Sir, like Vyas, Shreyansh, क्या कह रहे sir, हो? I want to grow till 20 and then want to stop my aging. अरे वाह, ऐसा क्यों भाई, बड़ा कर रहा तुमने यार, वो कंडीशंस लगा दी So हैं। like I want to become like till 20 and then come backwards. Every year my age will be smaller. अरे Like वाह, तो मतलब 20 तक But एज, I want to stay 20 only for 20 my तक whole जीना है, फिर life. वापस आना है। भाई की कोई वो बताया आंटी, सर बोलने बताया बच्चों। So I want to enjoy all the lifetime. Like when I child, I enjoy the childhood, and when I adult, I like the adult. वेरी गुड, ये भी बहुत अच्छी बात है। यू वांट टू एंजॉय द होल लाइफ व्हाटएवर द एज इज। Yes. वेरी गुड, वेरी Yes, sir. नाइस। चलो, श्रेयांश ने भी बड़ी अच्छी बात कही, वृंदा ने भी बड़ी अच्छी बात कही कि हम 20 की एज तक जाना चाहेंगे, फिर वापस आ जाना चाहेंगे। वृंदा ने कहा ये भी अच्छा आइडिया है। जैसे वो रेस नहीं होता, यहाँ से भागे वहां पे टच करके वापस आना, वही। yes sir. Yes, sir. अच्छा आइडिया है। तो ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी कुछ इसके बना लिए तो सर टाइम मशीन चाहिए होगी। So like relay race, we can run at half of the race and give a chance to next one. हाँ, so और But in our life, if we will happy, then happiness will come to us anytime it can come if we are very good. If you are thinking positively, if you really want happiness, if you are doing something for your happiness, whatever you enjoy doing in your life, whatever your hobbies are, if you're doing giving time to that, then in any stage of life you will remain happy. Am I right? है ना? जैसे फॉर एग्जांपल किसी की हॉबी है Sir, can you tell me who teaches us Vedic maths? Vedic maths. Yes, sir. Was there any class conducted of Vedic maths till now? no sir. no sir, no teacher was Today there, was no the link Vedic was there. maths, but link was not there. When was it? Yes, today or yesterday? So Sir, today. today Which period? today third period. Third period. Sir, no period was, no link was there. No Yes, one. sir. It was a kind of a free period for you. Yes sir. And so who will teach us reasoning? Reasoning and Vedic maths, beta, it is not clear till now. When once it will be clear, I will tell you कि कैसे होगा. Okay. So what will happen in our Vedic class means what the teacher will teach Vedic us? maths, in Vedic maths classes, you are taught tricks to increase the speed of your calculation. Whenever you are doing Sir, shortcuts and tricks. shortcuts, yes, tricks and shortcuts are told to the student to increase their calculation speed. Okay sir. ये कराते हैं. So I am taking Vedic maths in 8th C right now. Today only I had my third period, sorry, in 8th C Vedic maths period. तो उसमें मैंने यही कराया था. चलिए, so let's. I wrote a reasoning book, and I was confused in the third chapter. I have done blood relations, and that questions I have done, and I am so much confused. There are questions. He is mother of Q, and this type of questions have confused me. अच्छा, reasoning you're talking about. Sir, in reasoning book, blood relations chapter. अच्छा 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 अच्छा. So you have got your reasoning book. Yes, sir. Yes sir, Yes, we sir. have got with the course only. It is of MTG publication. Am I right? Yes, sir. So अच्छी, reasoning is also very interesting. मैं अगर चलो मेरे को अगर चांस मिला आपको कराने का, you will really like it. चलो, so question 9 डिस्कस करते हैं. वो वाली बात तो बिल्कुल हो गई कि मुझे तो सच में I want to become a kid. मुझे फिर से अच्छा लगेगा कि मैं बच्चा बन जाऊँ. नो टेंशन इन लाइफ. सारे लोग हमारे लिए कितना कुछ खाने पीने का सामान लेके आ रहे हैं, हमारे लिए कितना फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है बच्चों को.
So, but every stage of our life is important for us. Yes, वो भी बात सही है. Yes, sir. When we become child, our parents help us to do things. But when we adult, we help our youngers to do another thing. वही रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आ जाती है, जो हमारे पेरेंट्स सर, हमारे लिए. क्योंकि हम लोग उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसी को देते हैं, इसलिए वो हमारे पे भी आती है. Yes. चलिए. Sir, I want to be kid, but mine was that only. That's why if वो जो भी पढ़ाई होती है वो हम लोग वैसे आती हो, अगर माइंड वैसे ही है जो एडल्ट्स में जैसे हम. हाँ. Very, yeah, you're right. चलिए. So, shall we start question number 9? First part, the product of a positive and a negative integer is negative. This is true. एक negative और एक positive number का जो product होता है, that is negative. Correct. सही लिखा है. Second part, the product of two negative integers is negative. False. दो negative integers का product क्या होता है? Positive होता है. Positive. So the statement is false. Third part. Yes. The product of three negative integers is negative. This is absolutely true. तीन negative integers होंगे तो उनका product negative होता है. हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में. Every integer when multiplied with -1 gives its multiplicative inverse. False. Multiplicative inverse reciprocal करने से मिलता है. -1 से multiply करने पर नहीं मिलता. So this is false. Okay, understood? All of you. कोई doubt है? Multiplicative inverse reciprocal के equal होता है. Okay, fifth part. Multiplication on integers is commutative. Yes. Sir, true. True. Commutative law applicable होता है multiplication में. Yes. अभी मैंने आपको समझाया था कि A into B is always equal to B into A. So commutative law is applicable in case of multiplication. So statement is true. Sixth वाला भी true है. Associative law भी applicable होता है. So this is also true. Seventh is every non-zero integer has a multiplicative inverse of an integer. Sir, false. Is an integer. False. False. जैसे for example 4 एक non-zero integer है. 4 का reciprocal क्या होगा? Multiplicative inverse of 4 is what? 1/4. 4 का multiplicative inverse होता है 1/4. Multiplicative inverse या फिर reciprocal एक ही बात होती है. तो ये statement क्या हो गया? False हो गया. 4 का reciprocal एक integer नहीं होता है. Integer का reciprocal is not an integer. False. Okay, understood? Sir, can you please repeat the fourth one